So now moving ahead to the last speaker, but not the least, it's Chirag Agarwal, AIR1 in professional program. But before I ask Chirag to start his deliberation, few things I would like to mention. Chirag also got AIR1 in executive level as well, just exactly 1 year last year, 1 year back in the term. And it's very interesting to note that in both the terms, since I have personal association with Chirag, before the result, 2-3 दिन पहले जब से इंटरेक्शन हुआ, चिराग ऑलवेज सेड कि सर पास तो हो जाएंगे पर आई थिंक AR1 भी आएगा. And to my amazement, he got AR1 every time. Some people might say, sir, I think he's overconfident, that's why he's saying. But I believe he has done the analytics and data game so well that he knew कि one आने का chances high है. So here we are not talking about confidence, but we are talking about planning and strategy. So now over to Chirag Agarwal, All India Rank 1 professional program. Chirag, over to you. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सब लोग लाइक एकदम दम निकल गए, एसी इज ऑन, सो नींद आ रहा है ना. एंड आई होप इट्स नॉट अ इशू, लाइक मेक इट थोड़ा इंटरैक्टिव. सो फर्स्ट आई विल डिवाइड माई पार्ट इनटू टू पार्ट्स. It would be like first on preparation and then on presentation, and then also there would be interchange between two also in between. So I hope that's not an issue. So first of all, starting with like how was I feeling after getting a rank. So we were discussing about amongst ourselves also. See, rank लाके कोई अलग feeling नहीं आने वाला है. It is like other thing कि आपको अलग लगेगा, but you will feel the same if you are preparing for the same. अगर ऐसे बाई चांस आ गया एक बार लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा चीज़ आया है, बट देन आफ्टर दैट दैट्स नॉट अ बिग थिंग. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, सो आई वुड बी फोकसिंग मोर ऑन CS प्रोफेशनल बिकॉज एग्जीक्यूटिव का डिस्कशन हुआ है अभी ऑलरेडी बहुत. सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ CS प्रोफेशनल आई वुड से कि माई डेली रूटीन हैड बीन, मेरा कॉलेज का टाइमिंग्स वे 10 to 4 10 to 5 ऐसे रहता था. सो अर्ली मॉर्निंग मेरा कोई पढ़ाई नहीं पॉसिबल एकदम नहीं था बिकॉज आई हैव टू लीव होम बाई अराउंड 8:30 8:45. देन अर्ली मॉर्निंग आई वेकअप, वर्कआउट ये सब किए. उसके बाद तो when I enter home after like 6:30 करीब I enter home, hardly I am left with any energy to study. And that would be the case with most of the people who are doing either MT, क्योंकि प्रोफेशनल के साथ बहुत जन मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं. So that is a big issue there. So then also I managed anyhow to study 1 or 2 hours each day, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था at the end because I have to wake up next day and follow the same routine again. So 2 hours I am giving every day during my work days. अब means college days हो गया. अब उसके बाद what I used to do, one day I used to take off from college and 2 days there are Saturday and Sunday. I am getting 3 days. 3 days I am putting my best effort so that a weekly balance is maintained. कि हाँ मान लो 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा, द टिल द पॉइंट आई कैन टेक थिंग्स आई विल स्टडी, चाहे वो 12 घंटा हो या 7 घंटा हो. टिल द पॉइंट माई अंडरस्टैंडिंग का सैचुरेशन पॉइंट हैज़ नॉट बीन रीच फॉर दैट डे. सो दैट्स द पॉइंट. खाली यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग, खाली कंप्लीट करने के लिए नहीं करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग. सो हियर कम्स द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. I never focus on learning the things, be it important section हो, penalties हो, कुछ भी हो. If you are understanding the thing, वो चीज़ अपने आप याद होने लगता है. क्योंकि means when someone asks you anything, आप कोई चीज़ अगर समझे हुए हो, आप 1 का टेबल 2 का टेबल ये सब याद करके तो नहीं बैठे हो ना. ऑटोमेटिक इट्स ओवर टाइम यू आर रीडिंग अगेन एंड अगेन. वो आप लोग प्रैक्टिस किए तो उस वजह से याद हो गया अपने आप. यू कैन डू दैट. सो सेम थिंग इज विद दिस ओनली कि you have to do again and again and understand things very properly so that you don't have to go for learning the things. क्योंकि एक mental pressure आ जाता है अगर आप लोग को लगता है कि याद करना है. So एक pressure रहता है कि याद करना है. Personally when I try to learn go for learning things, मेरे को मान लो एक पेज करने में भी 30 minutes 40 minutes ऐसे लग जाता. But if I went for understanding 5 minutes में मेरा वो पेज done. सो अगर हम वो 5 मिनट को 5 बार देगा, मेरा 25 मिनट में फिर भी हो रहा है. एंड लर्निंग में मैं 40 मिनट्स एक बार इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड देन अगेन आई हैव टू इन्वेस्ट फॉर रिविजन. सो सी द डिफरेंस. यू आर सेविंग टाइम ऑल्सो एंड यू आर गोइंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट.
And in the paper patterns which I have been observing, Institute has been moving towards from rote learning to understanding based questions. कि हम लोग कितना समझे उस basis पे they will ask the questions. So I would never suggest कि you learn the things. Many people are like कि भैया learn करके ही हम करेंगे. It's your personal choice, but always focus on learning the things. Means understanding the things, not on learning the things. जो समझ जाए वो हम लोग लिख पाएंगे. At the end, the presentation point comes over here कि we have to present our answer, the things we have learned, to the person who is checking a copy. If he gets to know that this person has understood the concept and he's able to present pretty well, he will give you marks. A same person might have written the same thing, but he had learned the concept and just wrote it like that. चेकर को समझ में आ जाता है कि ये बंदा ने समझ के लिखा है या अपने बस याद करके लिखा हुआ है, वो थोड़ा राइटिंग में समझ में आ जाता है, द यूज ऑफ वर्ड्स. सो यू हैव टू कम्युनिकेट वॉट यू हैव अंडरस्टूड, नॉट वॉट यू हैव लर्नड. दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज फॉर लाइक लास्ट 1 month स्ट्रैटेजी. एग्जीक्यूटिव का तो आई विल नेवर टेल बिकॉज दैट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज दैट. And for professional, I would say because मेरा college का timings were such, normal days में मुझे उतना starting के months में मुझे उतना time नहीं मिलता था कि मैं prepare कर सकूं. So I knew मेरा 25th November को college के exams खत्म होने वाले थे. I had it clear कि 26th November till 28th December, the day before the exam, I have to give my best. मैंने 9-10 घंटा 11 घंटा भी तब पढ़ा है, 12 घंटा भी पढ़ा है, रात को 1-2 बजे भी सोया है. मीन्स इन एग्जीक्यूटिव आई यूज टू टेल कि मेरे को नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 8-9 घंटा 10 घंटा भी सोता था एग्जाम के 1 month पहले. बट इन प्रोफेशनल आई हैड इट क्लियर बिकॉज इफ आई डिडंट पुट दैट एफर्ट इन दैट 25 days, मेरे को और 6 months वापस मेहनत करना पड़ेगा. सो 25 days और 6 months इज इट्स अप टू यू कम्प्लीटली. वो 25 दिन मेहनत कर लो, 4 घंटा रोज कम सो लिए, फिर अगला 6 महीना तुम चाहे जितना सोना है सो. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि हम लोग को इस बार में निकालना है या धीरे धीरे निकालना है. सो वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम प्रेजेंटेशन पर्पस ओनली, हु ऑल थिंक लाइक दे आर प्रोफेशनल्स? किस किस को लगता है कि दे आर अ प्रोफेशनल? नो वन. आई आस्क्ड किस किस को लगता है. सो दैट्स द प्रॉब्लम. अगर मैं लगता है सबको लगना चाहिए कि दे आर अ प्रोफेशनल, बिकॉज इन द एग्जाम व्हेन यू आर राइटिंग you have to already think that you are a professional and you are giving the best. हम लोग means exams is just a checkpoint. हम लोग बहुत सारा गेम खेलते थे, एक आता था ना कि चेक पॉइंट आ गया ताकि so that we can proceed further. वैसे ये एग्जाम्स we have understood everything. समझने के बाद just for the suffix we are prefix we are using, giving the exam and getting the degree. But you have understood the thing and you have to be professional in your presentation. हम लोग no one would like to read long paragraphs. इंस्टीट्यूट का मैथ में भी पहले बहुत सारे पैराग्राफ्स रहते थे तो कोई पढ़ना नहीं चाहता था उतना. करेक्ट. वी हैव ग्रेजुअली सीन दैट इंस्टीट्यूट का मैथ भी एज दे रिलीज न्यू वर्जन्स एडिशंस, उसमें दे आर इंक्लूडिंग मोर एंड मोर पॉइंटर्स. सो इंस्टीट्यूट का मैथ का पॉइंट यहाँ पे आया कि यू हैव टू रेफर इंस्टीट्यूट मैथ कंप्लीटली, और कुछ चाहिए ही नहीं. इंस्टीट्यूट का मैथ में सब कुछ कवर्ड एंड इट इज़ सो परफेक्टली ड्राफ्टेड दैट यू कैन यूज इट लाइफ लॉन्ग टिल डेट. कि मेरे को भी लाइक इफ आई एम यूजिंग इट गोइंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन, आई एम राइटिंग एनी पेपर, आई यूज द इंस्टीट्यूट मैथ फॉर रेफरेंस. एंड होता है कि प्लेजरिज्म चेक में भी क्या आता है, हाईएस्ट इंस्टीट्यूट का वेबसाइट का ही मतलब लिंक्स आता है कि हाईएस्ट यहाँ पे हुआ है. हालांकि आई एम नॉट यूजिंग द इंस्टीट्यूट मैथ एक्चुअली, वहाँ से जो सीखा मैंने वही लिखा है. सो इंस्टीट्यूट का मैथ इज सो वेल ड्राफ्टेड. एंड किसी किसी को लगता है कि नहीं इंस्टीट्यूट का मैथ बहुत कम लिखा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला है, बाहर का दूसरा और कुछ एफर्ट नहीं करना है. इंस्टीट्यूट ने खुद ही लिस्ट ऑफ फर्दर रीडिंग्स बोल के बहुत सारे चीज़ दे रखे हैं. एक बार बस वो खोल के पढ़ लेना कितने बुक्स है कितने क्या है, अपने ही मन हो जाएगा कि नहीं इंस्टीट्यूट का मैथ ठीक है, समझ में आ जाएगा फिर. तो इंस्टीट्यूट का मैथ यू आर रेफरिंग. एंड देन इन प्रेजेंटेशन एज आई सेड यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल, बिकॉज योर एग्जाम्स हम लोग का दे आर जस्ट टेस्टिंग कि हाउ प्रोफेशनल यू कैन बी. एग्जाम्स में क्या देखते हैं, फर्स्टली दे आर गिविंग यू टाइम 3 hours, तुमको 3 hours में कंप्लीट करना है. थिंक लाइक यू हैव बीन गिवन एन असाइनमेंट ऑन अ वर्क, तुमको डेडलाइन दिया गया कि ये हम लोग को 3 घंटा में सबमिट करना है.
सो एंड एकदम मतलब उसमें बहुत चीज़ रिस्क पे है. सो वो 3 घंटा में तुम कैसे भी कंप्लीट करोगे ना एंटायर असाइनमेंट, आधा असाइनमेंट करके तो नहीं छोड़ोगे. सो इन 3 years यू हैव टू कंप्लीट योर एंटायर पेपर. ऐसा नहीं कि हम लोग आधा पेपर कर दिए, आता हो नहीं आता हो पूरा लिखो. डर का जो बात है कि फेल होने का डर है या नहीं आता उसका डर है, वो डर खाली अपने तक रखो, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे अंदर वो डर है. एट द एंड कि हम लोग पेपर में अगर वो डर दिखाएंगे, जो चेकर है उसको समझ में आएगा डर, तब वो मार्क्स काटेगा. अगर और तुमको एक कॉन्फिडेंटली लिख रहे हो, जो भी चाहे गलत आंसर लिखो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ लिखो कि तुमको उस वक्त डर नहीं लगना चाहिए कि हाँ वो हो रहा है. तो हम लोग जैसे जैसे लिखेंगे पेपर कंप्लीट होगा, वो डर किसी और को नहीं दिखना चाहिए. बाद में एग्ज़ाम हॉल से मेरे साथ होता है कि मैं एग्ज़ाम हॉल से निकल गया 3 years बाद, मेरे से पूछो कि एग्ज़ाम हॉल में कौन कौन थे, मुझे नहीं पता उतना. पेपर में मैंने क्या लिखा है वो भी मुझे नहीं पता. बी देयर कम्प्लीटली इन द मोमेंट वॉट यू आर राइटिंग. उस वक्त जो कर रहे हो बी कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन दैट. 3 घंटा जो तुमने एग्जाम दिया उसके बाद उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि हाँ बस इतना पता है कि अच्छा गया, खराब गया, कैसा गया, ओके. वो 3 years इज डन, दैट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक अगेन. फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर कि हम लोग का हाँ नेक्स्ट पेपर ये है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. एंड एज दे सेड, प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला है. फुल बुक यू कैन नॉट रीड. डू स्मार्ट स्टडी. सप्लीमेंट्स का बात आया. मैं अपना मतलब एग्ज़ाम डे मेरा फिक्स रहा कि सुबह उठ के एक बार सप्लीमेंट देखना है पूरा, चाहे 80 पेज हो 90 पेज हो. एंड वो सप्लीमेंट ऐसा नहीं कि खाली उसी दिन देखना है. फ्यू डेज अगो प्रिपेयर कि मतलब मान लो सप्लीमेंट में बहुत सारा चीज़ होता है कि मतलब हम लोग के रेलेवेंट नहीं है या एग्ज़ाम में रेलेवेंट नहीं है. हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स या राइट इट डाउन. उसके बाद सुबह उठ के टेक 30 minutes, डू द सप्लीमेंट्स. उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट बिकॉज कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ सकता है, सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, और एल्स यू गेट टू नो कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से. एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ पैटर्न ये रहेगा. कई कई लोग होते हैं कि मतलब एग्जाम हॉल में चले गए, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कितना क्या है. डायरेक्टली दे आर स्टडीड एंड उसके बाद इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ लिए, ठीक है एग्जाम देने आ गए. कुछ नहीं पता कि पैटर्न कैसा होता है, हम लोग को लिखना कैसा है. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखना है, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स. कि पहले हम लोग ने प्रोविजन लिख दिया, फिर ये सब फैक्ट्स आ गया, फिर अपना कंक्लूजन लिख दिया. एंड दैट ऑल्सो यू कैन नॉट डू इन एवरी क्वेश्चन. अब 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, अब हम लोग ऐसे पूरा बैठ के एकदम डिटेल में लिखेंगे, पेपर कंप्लीट नहीं होगा. यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडी. 5 मार्क का क्वेश्चन है, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ बोला नहीं हो, हम लोग ने 6 पॉइंट लिख दिया, 7 पॉइंट लिख दिया या 8 पॉइंट लिख दिया, मैक्स टू मैक्स डन, कंप्लीट. स्टार्ट ईच एंड एवरी आंसर फ्रॉम अ न्यू पेज. कोई कंजूसी नहीं करना है. चाहे अगला क्वेश्चन मान लो हम लोग का क्वेश्चन 1 खत्म हुआ है, नेक्स्ट पेज का 2-3 लाइन्स ही कंज्यूम हुआ है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज. कोई वो नहीं करना है, बिकॉज ये सब मैटर करता है. एंड फिर एट द एंड व्हाट यू डू, जो ब्लैंक स्पेसेस है, कट दैट आउट, उसको स्ट्राइक कर दो, उसमें कुछ नहीं करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लैंक स्पेसेस को ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है. उसके बाद यू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये सब जो होते हैं, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू वॉन्ट द चेकर टू सी कि हाँ हम लोग ने ये लिखा है, विच अदर्स माइट नॉट हैव रिटन दैट. सो दैट्स इंपॉर्टेंट दैट यू वॉन्ट द चेकर, कम्युनिकेट टू द चेकर कि भैया ये देखिए मैंने ये लिखा है, तो आप इसको चेक करिए. एंड सेक्शन नंबर्स डोंट कोट अनटिल एंड अनलेस यू आर कंप्लीटली श्योर. ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि मैंडेटरी हम लोग को सेक्शन नंबर लिखना ही होगा. सेम फॉर द केस स्टडीज कि हम लोग को केस लॉस का नाम नहीं लिखना है. मैं आई नेवर वेंट फॉर लर्निंग द सेक्शन नंबर्स और द केस लॉ नेम्स. केस लॉ का नाम में हम लोग को केस में क्या हुआ था वो ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना. फैक्ट्स क्या है, कंक्लूजन क्या है. मान लो अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया, मैक्स टू मैक्स ठीक है आधा मार्क्स जाएगा, लिख देंगे इन अ लीडिंग केस लॉ के नाम के जगह. बट एट द एंड आई एम नोइंग द कंक्लूजन एंड ऑल. वो सब मैं अगर अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ, एग्जामिनर मान लो अगर हम लोग अगर याद करने जाते सब चीज़, वी माइट हैव कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ टाइम इन लर्निंग दोज थिंग्स, ड्यू टू विच वी मिस्ड ऑन द अदर थिंग्स. सो दीज आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म कि हम लोग को ये सब छोटा छोटा चीज़ देखना होगा. इकोनॉमिक कॉस्ट, ये सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, कि हम लोग को ये सब थोड़ा वो करना होगा ताकि वी कैन इंश्योर वी कवर ईच एंड एवरीथिंग. 100% कवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ नहीं छोड़ना है इंस्टीट्यूट का मैथ से, क्योंकि दे हैव नेवर प्रिस्क्राइब कि ये चैप्टर इतना नंबर का ही आएगा.
दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. उन लोग ने ये भी नहीं बोला है कहीं कि हम लोग खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछेंगे. सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी कंप्लीट फोकस नहीं रहना चाहिए एंड कंप्लीट इग्नोरेंस भी नहीं रहना चाहिए. सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू. These are the main things, and at the end the confidence is very important. Means like मेरा था कि you have selected this course कि खुद का मर्जी से हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं एंड मेरे को we have two options, या तो लटक लटक के पास हो गए, डिग्री आ गया ठीक है, और एल्स एक बार में करना है, अच्छे से करना है. सो ये हम लोग 6 महीना जो बार बार हम लोग डेफर करते हैं, ये सब करते हैं, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, बिकॉज इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है. यू गिव द 6 months टू योर सेल्फ, completely do that and dedicate yourself towards that and then see the results. आप लोग ने जो सोचा है वो आपको अचीव करना है, बिकॉज यू आर मेकिंग अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ नॉट टू अदर्स. हम लोग को पढ़ना खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं पढ़ना है. हम लोग कमाएंगे, वी विल कीप आवर फैमिली हैप्पी. हम लोग खाली शो ऑफ करने के लिए नहीं कि हाँ ठीक है मान लो मुझे रैंक आया, मुझे शो ऑफ करना कि रैंक आ गया, ये देखो AIR-1 आया. रैंक आएगा 6 महीना, वो उतना वो रेलेवेंस रहेगा, 1 साल रेलेवेंस रहेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं. इफ़ आई डोंट हैव माई स्किल्स टू प्रेजेंट टू द पर्सन in the business, in any place, court maybe, if I am appearing before the tribunal, before the judge, if I am not able to communicate well, judge सीधा झाड़ देगा, कुछ नहीं बोलेगा वो. Some judges will ठीक है explain कि ऐसे ऐसे करो, but mostly they don't have complete time to explain things to you. You have to learn by yourself. So work on yourself, बस.